Hello girls, welcome to fashion designing class. This is your first video for Sem 4. I have already told you in this you are having traditional embroideries also. This is the paper for traditional embroideries. In the traditional embroidery, India is having many types of embroideries, out of which every state is having their own special embroideries, which are used for enhancing the beauty of the fabric. They make the fabrics more beautiful, they make the garments more beautiful with these types of embroideries. Today we will start it from the Gujarat. Gujarat is having embroidery which is known as Sindhi embroidery or Kutch work, because this is started from the Sindh and Kutch portions of the Gujarat, which is some part of which is there in the Pakistan also. I have already given you notes about this, and today I am going to do this in a practical way. Why I am doing started with this is because this is one of the toughest embroideries and you need a lot of practice to do this work. If once you are able to learn this, you know the trick how the frame has to be made, then it is very easy for you. In this embroidery, this frame is the basic one. This is the basic one, but still it is a little bit difficult to start it. ये सबसे पहला आपका होता है सिंधी एम्ब्रॉयडरी में, लेकिन ये भी बनाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है. यहाँ से हम शुरू करते हैं so that you will know how the needle is moving and how we are filling it. The speciality of this embroidery is that from the top side it is fully covered and in the back side you will get only a few stitches. So now we will start with the small block. Just see, you have to draw the square blocks in this way. See, I have drawn separately different square blocks, and now you have to start with this. You start from any one of the corner, but make sure that it is comfortable for you to start. See, I have started from this corner. Then you have to put the needle from the other corner, but with a little bit of this. In this way you have to keep it. See, this is the way. Thread is in the back side of your finger and needle is in the front side, and you have to take it out. इस तरह से आप इसको निकालेंगे. एंड जब इस तरह से निकाल रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखिए, आपका ये जो थ्रेड है ये ऊपर की तरफ ऐसे आया है, एंड दूसरी बार जब हम टर्न कर रहे हैं तो उसके ऊपर से हम इसको लेके बनाएंगे. इस तरह से हम उसके ऊपर से लेकर के इसको बनाएंगे. एंड नाउ द थ्रेड विल बी इन द बैक साइड एंड यू हैव टू टेक द निडल इन दिस वे. बैक साइड से लेते हुए ऐसे करके आप इसको इस तरह से करेंगे, इस तरह से लगाएंगे. ये देखिए, मैंने निडल को रख करके भी आपको दिखाया है. इस तरह से आप इसको रखेंगे, फिर यहाँ से आप निडल को खींच करके निकाल देंगे. दिस इज़ द वे. इस तरह से निकल गया. इसके बाद में आप यहाँ से फिर से हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका जो थ्रेड वर्किंग पे है वो ऊपर की तरफ है, एंड जो थ्रेड जिससे निडल के साथ में जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है. इस तरह से आप इसको रखेंगे एंड टेक इट आउट. इस तरह से निकालिए. अब हमारा यहाँ 1 2 3 हो गए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डू द स्क्वायर वन. जब नीचे की तरफ कर रहे हैं तो मेक इट अ पॉइंट कि आप इस तरह से ये ऊपर कर रहे हैं तो हमारा अगला पार्ट जो है वो नीचे की तरफ आना चाहिए. सो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे से हम यहाँ पे, चूँकि हम लोग सेम थ्रेड से कर सकते हैं, बट इफ़ आई विल डू विद द सेम थ्रेड आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा फ्रेम है एंड कौन सा फिलिंग है. दैट्स वाई आई एम गोइंग विद अ डबल कलर्ड थ्रेड. इसके लिए मैं 2 अलग अलग तरह के थ्रेड ले रही हूँ. जैसे देखिए, अब आप देख सकते हैं कि मैंने पिंक थ्रेड से फ्रेम बनाया है. अब मैं क्या करती हूँ, इसकी फिलिंग जो है मैं दूसरे कलर के थ्रेड से करती हूँ, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. दूसरे कलर का थ्रेड मैं उसी कॉर्नर से ले रही हूँ जिस कॉर्नर पे मैंने पहले कलर का थ्रेड को नीचे डाला था. ठीक है, उसी कलर के थ्रेड को मैं वहीं से ले रही हूँ जहाँ मैंने पहला कलर का नीचे डाला है. इस तरह से ये देखिए, इस तरह से मैंने उसको नीचे से निकाल लिया. नाउ व्हाट आई विल डू इज़, यहाँ पे जब हम थ्रेड ले रहे थे निडल के साथ में,
we have a small, see, a small filling is there. हम इसके अंदर से इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से मैं इस थ्रेड के बीच से, दोनों थ्रेड्स के बीच में जो छोटी सी फिलिंग बनी थी, ये देखिए एकदम पास से मैं दिखा रही हूँ, ये जो छोटी सी फिलिंग बनी हुई है, मैं इसके अंदर से इसको निकाल रही हूँ। मतलब क्या है कि इस इधर वाले स्टिच का एंड इधर वाले एम्ब्रॉयडरी का, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा फ्रेम बना हुआ है, मैं उसके अंदर से निडल को निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि हमारा पिंक थ्रेड अब नीचे चला गया था, तो हम उसके पिंक थ्रेड के नीचे से इस तरह से निडल को रखेंगे। अभी क्या है, यहाँ हमारा पिंक थ्रेड हमने ऊपर किया है एंड मैरून थ्रेड जो है वो नीचे की तरफ है। उसके अंदर से इस तरह से देखिए आपका निडल यहाँ बहुत इजीली मूव ऑन हो रहा है, तो हम तब यहाँ से इसको निकाल लेंगे इस तरह से। गर्ल्स बॉक्सेस और भी छोटे बनाए जाते हैं, क्योंकि आपको देख करके समझने में आसानी होगी, मैं इसीलिए थोड़े से बड़े बॉक्सेस बनाई हूँ। अब आप देखिए फिर से यहाँ पे मैं इसका भी फिर वही चीज़ है, यहाँ एक छोटा सा, हम जब फैब्रिक के अंदर में से निडल निकाले थे फ्रेम बनाते वक्त, उस वक्त देखिए एक छोटा सा ब्लॉक बन गया था, वहाँ पे हम उस ब्लॉक के अंदर घुसाते हैं। देखिए यहाँ मेरी निडल बिल्कुल कहीं मूव नहीं हो रही है, उसके अंदर फंस चुकी है, वहीं से हमें निकालना होगा ताकि मेरी थ्रेड उसमें फंसी रहे, कहीं से निकले नहीं। इसकी वजह से मेरी थ्रेड वहाँ पे फंसी रहेगी। ये देखिए इस तरह से मैंने सेकेंड वाला बनाया। सेकेंड बनाने के बाद में वापस से फिर मैं फर्स्ट पिंक वाला जो थ्रेड था उसको ऊपर करती हूँ एंड मैरून वाले को नीचे रख रही हूँ इस तरह से। जस्ट सी कि मैं कैसे कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ जो पिंक थ्रेड था इसको मैंने इस तरह से किया हुआ है एंड अब इसको वापस हम ले रहे हैं। इसको वापस लेके फिर से मैं वही काम करूँगी जो पहले किया था। ये देखिए यहाँ जो हमारा छोटा सा फ्रेम बना हुआ था, हमने जब फ्रेम बनाने की कोशिश की थी तब हमने यहाँ पे निडल को डाला था फैब्रिक के साथ में। अब हम जो सेकेंड राउंड बनाते हैं, सेकेंड राउंड कभी भी फैब्रिक के अंदर में टच नहीं करता है। फर्स्ट राउंड का जो हमने फ्रेम बनाया था उसी के बीच से होते हुए आपका फिलिंग का काम होता है। फिलिंग का काम करने के लिए आप कभी भी फैब्रिक को टच नहीं करते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, इसका दोनों तरफ से बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए पिंक वाले को यहाँ से मैंने इसको पिक किया, मैरून वाले को दबा करके इस तरह से पिंक को पिक किया है। अब यहाँ देखिए हमारा जो है वो मैरून का कलर का छुपा हुआ है एंड पिंक पूरा दिख रहा है। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल पिक द मैरून थ्रेड ऑल्सो। सो यहाँ से हम इस तरह से एक मैरून को दबाए हैं और दूसरे मैरून को मैं पिक करूँगी। इस तरह से मैं दूसरे मैरून थ्रेड को भी पिक कर रही हूँ। सी आई विल शो यू हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक। ये देखिए इस तरह से आपका ये बना रहेगा। एक मैरून को मैंने पिक किया है, एक मैरून को दबाया है। दिस इज़ द लास्ट राउंड ऑफ द फ्रेम। हम जो पहला बॉक्स बना रहे थे इसका आखिरी जब स्टेज होगा तब हमें इस तरह से काम करना होगा, तब जाकर के आपका ब्लॉक जो है वो कंप्लीट होगा इस तरह से। ये देखिए इसके अंदर से हम इसको निकालते हुए इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया है। एंड नाउ सी हाउ इट इज़ लुकिंग। इस तरह से होगा एंड जहाँ से हमने पिंक वाले को नीचे डाला था वहीं हम फिर से इसको भी नीचे की तरफ डाल देंगे। ये देखिए इसको भी हम नीचे की तरफ उसी तरह से ले लेंगे जैसे हमने पिंक वाले को लिया था। एंड नाउ सी आपका यहाँ तो ये देखिए आपका ये पूरा फिल किया हुआ है। सी इन दिस वे ऑल्सो दिस इज टोटली फिल्ड, बट व्हेन यू विल सी द बैक साइड ऑफ दिस, ये देखिए इसके बैक साइड में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ 1 2 3 4 छोटे से टक्स के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। एंड फ्रंट साइड में दिस इज टोटली फिल्ड। दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ संधे वर्क। मैं इसका रिवर्स में भी एक करके दिखा रही हूँ। अभी मैं मैरून से इसका फ्रेम बनाती हूँ। ये देखिए मैरून से जब फ्रेम बना रहे हैं मैंने फिर वही एक कॉर्नर से इसको पिक किया है एंड दूसरे कॉर्नर पे एंगल में थोड़ा सा एंगल लेकर के इस तरह से हम, ये देखिए इस तरह से मैंने निडल को डाला हुआ है।
सी द वे आई हैव गिवन द निडल। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तभी आपका फ्रेम सही बनेगा। इसकी स्पेशलिटी ये है कि अगर आपका फ्रेम सही बन गया है तो फिलिंग करना बहुत ही आसान होता है। सी, यहाँ से फिर मैं इस तरह से ऐसे करके दूसरा वाला निडल डाल रही हूँ दूसरे कॉर्नर पे इस तरह से निडल डाला, फिर मैंने इसको टाइट किया। अब मैं तीसरे कॉर्नर पे आई हूँ, तीसरे कॉर्नर पे मैं इस तरह से निडल डाल रही हूँ। मैं निडल को रख के आपको दिखा रही हूँ किस एंगल से डाल रहे हैं। ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द निडल, अदरवाइज आपका ये नहीं बनेगा। अब मैंने क्या किया है, इसको नीचे की तरफ लाते हुए इस तरह से हम इसको नीचे की तरफ लाएंगे पहले थ्रेड के, एंड फैब्रिक जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पे मैं इसको नीचे करते हुए निडल को खींच रही हूँ। तो सी द फ्रेम इज़ नाउ रेडी। यहाँ देखिए अब हमारा यहाँ फ्रेम तैयार है। अगर आपका फ्रेम सही बनेगा तो आपका जो है वर्क भी फिलिंग का करेक्ट बनेगा। अब हम फिर क्या करते हैं, दूसरे कलर का थ्रेड मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ से मैंने क्लोज़ किया था। फ्रेम को हम जहाँ क्लोज़ करते हैं वहीं से हम फिलिंग का काम भी शुरू करते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने शुरू किया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको वहीं से ले रही हूँ जहाँ से जिस पे यहाँ हमने जब फैब्रिक लिया था पहला वाला मैरून वाला फ्रेम बनाते वक्त हमने जो फैब्रिक लिया, इस तरह से देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फ्रेम बना हुआ है। हम उसके अंदर से देखिए मेरी निडल यहाँ बिल्कुल हिल नहीं रही है, तो हम इसके अंदर से निकालेंगे। अगर आपकी निडल हिलेगी तो आपका फिलिंग का काम नहीं बनेगा। तो यू हैव टू सी दैट द थ्रेड इज़ नॉट गोइंग मूविंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। ये देखिए अब मैं मैरून कलर के थ्रेड के अंदर से निकाल रही हूँ, पिंक कलर का थ्रेड मेरा फ्रेम बन रहा है। ये देखिए इस तरह से फिलिंग मैं पिंक कलर से कर रही हूँ। वापस से फिर वही जो यहाँ पे हमारी एक छोटी सी फ्रेम बनी हुई थी हम उसके अंदर से निडल को फिर से निकाल रहे हैं। इस तरह से हम उसके अंदर से निकालें। नाउ अगेन यू हैव टू गो विद दिस। मैरून कलर के थ्रेड को मैंने ऊपर रखा, उसके अंदर से निकाला, पिंक कलर के थ्रेड को नीचे रखा हुआ है। अब मैं तीसरे वाले पे आ रही हूँ। तीसरे वाले पे आके इस तरह से फिर यहाँ निडल फंसाया। फिर सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो, बट ओनली थिंग इज़ आपको ये देखना है कि ये जो फिलिंग होती है वीविंग की तरफ होती है। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने बेसिक वीव्स में पढ़ा था प्लेन वीव। ये देखने में कुछ उसी तरह से रहेगी एंड फिलिंग हो जाएगी, बॉक्स में पूरी फिल हो जाती है। ये देखने में आपकी जो फिलिंग वीव है कुछ उसी के अनुसार रहती है जो हमने वीविंग के टाइम पे, फैब्रिक वीविंग के टाइम पे पढ़ा था। गर्ल्स एक चीज़ देखिएगा, जितनी भी एम्ब्रॉयडरीज होती है वो कहीं ना कहीं हमारे वीव्स को भी रिप्रेजेंट कर रही है, उसी वीव के अकॉर्डिंगली बनी है। नाउ दिस इज़ आवर सेकेंड वन। ये देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा भी बन गया है। अब मैं एक और आपको बना के दिखा रही हूँ जस्ट टू शो कि किस तरह से आप इसको मूव ऑन करेंगे। अगर निडल का फ्रेम आपका डायरेक्शन सही नहीं है तो आपका फ्रेम में ये बनेगा नहीं। सो यू हैव टू सी, जैसे एक कॉर्नर से मैंने शुरू किया है, ये देखिए उसको एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं हम। ये देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा फैब्रिक लिया हुआ है, इसको निकाल लिया। नाउ अगेन इस उल्टे डायरेक्शन से आते हुए फिर से मैंने देखिए थोड़ा सा निडल, अब निडल को मैंने कैसे रखा उसको ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ से अंदर डाला है, इधर आया है निडल, इस तरह से किया है। इसके बाद में फिर मैं निडल के डायरेक्शन को मैं आपको पर्टिकुलरली बता रही हूँ। निडल के डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए कि निडल कैसे लगा हुआ है। सबसे पहले फ्रेम बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका फ्रेम नहीं है तो आपका ये काम नहीं होगा। एंड द स्पेशलिटी इज़ ये ऊपर से एकदम भरा हुआ रहता है एंड अंदर से पीछे की तरफ से पूरा खाली रहता है। जब हम 3 डायरेक्शन में बना लेते हैं, चौथे डायरेक्शन में आते वक्त हमें क्या करना होता है, पहले डायरेक्शन के नीचे से निडल को डालना होता है। पहला वाला जो डायरेक्शन था स्क्वायर स्ट्रेट लाइन, उसके नीचे से डालते हुए हम इस तरह से उसको खींचते हैं एंड जहाँ हमने शुरू किया था उसको वहीं पे उसी के थोड़े बगल से निडल को नीचे की तरफ ले आते हैं। ये देखिए मैं इसीलिए आपको क्लियरली दिखाई दे इसी के लिए मैं 2 तरह के थ्रेड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे ये एक तरह के थ्रेड से भी बनता है, सिंगल कलर के थ्रेड से भी हम इसको बना सकते हैं। ये देखिए अब मैं सीधे इस तरह से ये जो हमारी फिलिंग थी हम उसके